इसके ऊपर ही एक समिट क्या पूरी हमारी पाकिस्तान में है। आई थिंक वी सीम टू फॉरगेट दैट। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लामा की लिखत में आप यकीन करें जो ईरान भी बना है वो अल्लामा की शायरी से बना है और वो आयतुल ख़ुमैनी भी इस बात को यकीन करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं हमारे अपने फाउंडिंग फादर दूसरे मुल्क के भी एक फाउंडिंग फादर अपनाए जाते हैं। तो दैट्स द लेवल ऑफ इम्पैक्ट ही हैड एंड वी एज पाकिस्तानीज डोंट engage him as much as we should. Maybe there is a conscious effort from the top or whatever you want to call it. अल्लामा इकबाल डे भी चला गया कुछ चंद साल पहले। तो इस तरह से हल्का हल्का जो है फिर कबूलियत आती है। आई थिंक आज भी बच्चों से पूछें स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं, you ask them what they're learning in school and you ask about अल्लामा इकबाल, they don't know anything. कोई एक नहीं है, कोई ना एक शेर, that's it। कि बस एक तस्वीर लगी होती है, हाँ वो बंदा जिसकी तस्वीर है, यकीन करें कि आज उनके हाल है। So that's the reality that has come to it. That's a conscious effort, unconscious effort, but it's definitely something we should pay attention. खैर मेरा मौजू आज जो है वो इंटरनेशनल जस्टिस के हवाले से, and I can't begin with a more better phrase than something I used to recite as a kid. No justice, no peace. I remember back in 1995, when the Bosnian crisis was going on, I was in the United States as well. मेरे वाले साहब हमें हर चीज़ में बड़ा इंगेज रखते थे उसमें। आप सोच सकते हैं कि 7, 8, 9 साल का बच्चा क्या जानेगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या नहीं। But he exposed us at that time, and we went to rallies and we went to so many things. Bosnia, Kosovo का तो पूरा जंग मेरे याद है। नाइट लाइन में टेड कॉपल आता था हर रात और अपडेट देते थे लाइव कोसोवो। उस पर आज से मीडिया का बड़ा वो रुझान था। The other day I was speaking about, मुझे बस ये बातें याद आ रही हैं कि my grandmother, I just visited her grave. She's buried here in Islamabad. We used to live in Islamabad in the 90s. She died from a heart attack. And what's the interesting part is that she died from a heart attack even though she didn't have a heart condition. And you want to know what was the last thing she did? उस वक्त मीडिया नया आया हुआ था, इराक की जंग चल रही थी और उस वक्त एक क्लिप आई। उस वक्त तो कोई ये रूल्स एंड रेगुलेशंस मीडिया के क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे हैं। उसमें अमेरिकन्स ने कुछ बॉम्बिंग की थी जिसके अंदर कुछ बच्चे और लोग मर गए। 300 बहुत मशहूर वाक़या था बगदाद के अंदर। उसके वीडियोस सारे उन्होंने CNN ने लगाए थे। उसको देखते हुए उनका हाल ऐसे हो गया कि उनको हार्ट अटैक ही हो गया और उनका इंतकाल हो गया। सो मैं उसको रिमेंबर करता हूँ ये सारी चीज़ें, that the sensitivity of the suffering of the people across the world. We talk about peace, but we cannot talk about peace until we talk about justice. And जब तक justice नहीं होगा, you cannot hope to achieve that. So all those rallies, I mean, there's one thing I always remember: Gaza की rally, Kashmir की rally, you name it. I can't even count how many rallies have been in America and Pakistan. Always the statement: no justice, no peace. And it's significant, this word, because the idea of international justice, this idea of coming together in a modern history में हम देखें, League of Nations का बड़ा एक idea था, लेकिन वो idea failed इस basis पे हो गया क्योंकि उसके अंदर भी rigidity थी कि सबको agree करना है तो फिर बात हो गई। वो बात आज भी जो previous speaker ने भी mention किया कि United Nations के अंदर और Security Council में चंद मुल्कों के पास ये veto का इख्तियार है। And what happens? That's not justice. That's selective. And when you have anything where it's selective, that's an issue. So the disempowered system, the selective justice element, and of course the dilemma of true universality. इन 3 चीज़ों पे थोड़ा सा मैं गुफ्तगू करूँगा। अगर हम देखते हैं कि disempowered systems में एग्जाम्पल आपको चंद मिसाल, International Criminal Court of Justice ने अमेरिका के खिलाफ 1986 में एक फैसला दिया था, निकारागुआ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, वेरी फेमस केस, जिसके अंदर अमेरिका जो है बाकायदा अमेरिका वाज फंडिंग कॉन्ट्रा रेबल्स टू इलीगली ओवरथ्रो एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड दे वर कॉट रेड हैंडेड। एंड वो साबित भी हो गया कोर्ट अदालत में। और फिर आखिर में क्या हुआ, फैसले से पहले अमेरिका ने कहा अब हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, हम हट जाएंगे क्योंकि खिलाफ फैसला खिलाफ आ गया।
What type of international justice जहाँ पे आपकी मर्जी है, जब आप कटहरे में जाएं, जब आप कटहरे में नहीं जाएं, और आपके खिलाफ में फैसला तो फिर आप हट जाएं और कहें नहीं मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हिस्सा अब नहीं हूँ। तो इस किस्म के मजाक यूनाइटेड नेशन के, अगर सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो जितने सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन इजराइल के खिलाफ है, कोई हम मुल्क के खिलाफ है नहीं। लेकिन क्या एक्शन? नेक्स्ट टू नन। How many of the resolutions solely have been vetoed by the United States? How many have they only been abstained by? इस हद तक भी वैसी बातें होती थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता था, वो तो abstain करता था। मतलब इतना बुरा हाल था कि भाई चलो, लेकिन कभी हाँ में हाँ नहीं मिलाता था, which is बहुत वाज़ेह तौर पे। So this tells you what sort of disempowered system is this? हम बात करते हैं 2005 में एक R2P के कॉल आया था कि सारी दुनिया के ममालिक के लीडर्स ने एग्री किया था वर्ल्ड समिट में 2005 में कि राइट टू प्रोटेक्ट, वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट, वी आर गोइंग टू मोबिलाइज। एक प्रिंसिपल था कि अगर गरीब लोग, कहीं लोग जो है सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे वी विल टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट देम। दिस कॉन्सेप्ट वाज यूनिवर्सली एग्रीड, लेकिन एक्चुअलिटी वाज जस्ट ऑन पेपर। And since 2005 until today, this has never been truly brought into practice. So when we talk about this disempowered system, you can see there are issues. When you look at the idea of selective justice में क्या है, हम खुद देखते हैं। हमें कश्मीर की बात की, यहाँ पे फ़लस्तीन की बात की, आज भी फ़लस्तीन के साथ क्या हाल हुआ था, हमें तो वाज़ेह तौर पे नज़र आता है जब आप खोल लें अपने, अब तो खैर इतना नहीं आता, लेकिन पिछले फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, ये सब तक आप देखते थे कि बॉर्डर पे पोलैंड का खोला हुआ है, यूक्रेनियन रेफ्यूजीज आ सकते हैं, बिल्कुल बराबर में आपके अफगानी रेफ्यूजीज, सीरियन रेफ्यूजीज, उनको इजाज़त दी है। यूरोप ने उनको 3 साल के लिए इजाज़त दी हुई कि भाई आप जॉब करो, कोई करो, अपनी आसानी के लिए, क्योंकि यूक्रेन के अंदर वो है। What about those Palestinians who've been suffering for so long? What about the Kashmiris? What about the Gazans? What about the people who've been suffering in the Central African Republic? उसका भी अगर मिसाल में आपको दूँ, आप लोग हंसने रह जाएंगे। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में उन्होंने कहा कि ये सलका रेबल्स आ गए और इन्होंने निज़ाम बदल दिया, और फ्रेंच गवर्नमेंट ने कहा, बिकॉज एक फॉर्मर कॉलोनी थी फ्रांस की, भाई हमें कुछ एक्शन लेना है। वहाँ जाके मुसलमानों से उन्होंने हथियार लिए, और बाकायदा मुसलमान वहाँ पे माइनॉरिटी है, मुसलमानों से हथियार लिया और वहाँ जाके बैठ गए, और जो गैर मुसलमान थे वहाँ के एंटी बलाका मिलिशिया, उन्होंने कत्ल गारत शुरू कर ली। आप यकीन करें उस मुल्क के अंदर 438 इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग मसाजिद थे, 438। एक साल के अंदर कुछ आई थिंक 9 रह गए। आप लोगों को शायद यू डोंट इवन नो अबाउट दिस, बिकॉज व्हाट मीडिया कवरेज, कौन सी मीडिया कवरेज? आप जानते हैं आपके सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में क्या है, पता नहीं नक्शे में कहाँ है, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू नो, they don't want you to know, and this is the international regime. Oh, we came to throw the Salaka rebels out, and ulta kya aapko qatlo gharat picture. So this type of selective justice, many examples, main kya ginti aapko karte raha hu ki where selective justice applied, but know this, jahan pe aapne selective justice istemal kiya, apnaya, that is injustice. That is injustice. You cannot tell me about the suffering of the Ukrainian people and not talk about the Palestinians. Impossible. And not talk about the Kashmiris, and not talk about all the other issues that have been going on in the Islamic world. But only when it is convenient. Only when it's convenient and it goes with the narrative वो discuss होते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, the Crimean Tatar मुसलमान, उनका बड़ा एक रिकग्निशन हो रहा है यूरोप के अंदर, क्योंकि वो यूक्रेन के साथ है, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दीज टाइप ऑफ इवेंट्स, दिस इज द थिंग दैट लीड्स टू दैट। अभी जो एम्बेसडर साहब ने भी मेंशन किया था, एक और मिसाल आपको दे दूं, एनपीटी की जो ट्रीटी है उसको आउट में जो दिया गया है इंडिया को, बिकॉज वो यूनाइटेड स्टेट्स क्या रहा है, हम पाकिस्तान यहाँ पे बैठे हुए हैं 50, 60, 70 साल से उनका जो सपोजिड एलाय है, हमें थ्रेट किया जा रहा है, हमें जो है डॉक्टर साहब को जो है वहाँ पे गिरफ्तार करके हाउस अरेस्ट में किया गया है, और उल्टा जो है आप इंडिया करें, ठीक है खैर है, आपके लिए हम एक्सक्यूज निकाल लेते हैं इस ट्रीटी से। सो व्हेन यू हैव सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ, दिस इज वेयर पीपल से ये निज़ाम कैसे हो सकता है, हाउ कैन आई एक्सेप्ट दिस निज़ाम,
जहाँ पे आपके पास जो है एक डिलेमा ऑफ ट्रू यूनिवर्सलिटी, मैं आपको बता दूँ यूनिवर्सलिटी के ऊपर चाइना का एक जो पिन पॉइंट है वो यही है। वो कहते हैं कौन सी यूनिवर्सल राइट्स हमारे अपने हैं, चाइनीज वैल्यूज, उसको रिकग्निशन क्यों नहीं मिलती? कन्फ्यूशियन वैल्यूज, आपने पढ़ा है कन्फ्यूशियस, मेंशियस, इनके फिलोसोफर्स, इनके अपने मोरल स्टैंडिंग्स। These are things that we have to be, if we want to create a global system जहाँ पे इंटरनेशनल निज़ाम हो तो सबकी फिर एक रिस्पेक्ट होगी। अब एज ए रिजल्ट हमने ये 75 years में यूनाइटेड नेशंस और दीगर जो इंटरनेशनल इदारे हैं, they did not follow this, so what happened? अब क्या हुआ? इसका रिजल्ट क्या था? इसका रिजल्ट एक तो वाज़े तौर पे ये मुल्क ने बर्दाश्त करना पड़ा जिसके अंदर ऑलमोस्ट 80,000 लोगों का लॉस ऑफ लाइफ हुई। टेररिज्म is a result of the lack of international justice. This is the truth. कोई टेररिज्म में कोई पागल बंदा नहीं है वहाँ पैलेस्टाइन के अंदर, he goes and does a suicide attack. He's not stupid. There's a reasoning behind what he's doing. You're not addressing that. मैं एज पाकिस्तानी आपको खुद कहता हूँ, अगर एक मुख्तसर एग्जाम्पल आपको बता दूँ पाकिस्तान के अंदर ये TTP की जो बात चल रही है यहाँ अंदर, चले उनकी जो भी जिस हिसाब से है, लेकिन आपको पता है कहाँ से शुरू हुआ, वजह क्या है? अक्टूबर 30, 2006 में एक बमबारी हुई थी एक मदरसा में जिसके अंदर 79 बच्चे का इंतकाल हुआ। जो रहीमुल्लाह यूसुफज़ई जो है जर्नलिस्ट है, अल्लाह रहम फरमाए उनके ऊपर, he passed away 2 years ago. He exposed the reality of what that was. अमेरिकन कह रहे हैं अहमद अल-जवाहिरी, आज कह रहे हैं ना काबुल में उन्हें उड़ा दिया, उस वक्त 2006 की बात है, कह रहे थे कि अहमद अल-जवाहिरी यहाँ छुपा हुआ है इसलिए हमने बॉम्ब यहाँ पे सपोजिटली फेंक दिया। पाकिस्तानी उस वक्त मुझे याद है द ऑफिशियल लाइन ऑफ द गवर्नमेंट वाज नहीं, वो हमने किया है, क्योंकि मुशर्रफ साहब डिडंट वांट टू एडमिट कि अमेरिकन को इजाज़त दी गई ड्रोन स्ट्राइक के लिए। आज तक no one from the government has gone and held hands with the families of those mothers and fathers and said sorry. APS के बच्चों को हम याद करते हैं, APS के बच्चों के फैमिलीज के लिए आपने फंड खोले हुए, दिस इज गुड, मैं मना नहीं कर रहा, गुड, लेकिन ये भी तो हमारे बच्चे हैं। ये क्या पाकिस्तानी बच्चे नहीं थे जो मरे थे गलती में? जो भी वॉर ऑन टेरर आपकी पॉलिसीज नहीं थे, इनका कोई हक नहीं बनता। 14 दिन बाद अक्टूबर 30 में एक बाजोर एजेंसी का बंदा आके सबसे बड़ा सुसाइड अटैक करता है नौजवानों पे हमारे फौज के डामाडोला में। 42 नौजवान मरे नवंबर में, अगर आपको याद है 2 हफ्ते बाद। और उसके बाद TTP ऊपर, TTP चलना, TTP कुछ नहीं था उससे, नथिंग। वो पूरा नैरेटिव जो है, जब आप जस्टिस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, so what's going to happen? There's going to be a reaction. So terrorism is a direct result when international justice is not provided. Another result, आज के दौर में आप देखें रशिया, what is Russia doing? Russia is doing the exact same thing the West has done. ग्रेनाडा में जब रोनाल्ड रेगन ने अटैक किया था, आपको पता है रोनाल्ड रेगन के क्या एक्सक्यूज था? वहाँ पे मेरे अमेरिकन सिटीजन्स जो हैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए में, उनकी हिफाजत के लिए मैं फौज भेज रहा हूँ। पूरा रिजीम ग्रेनाडा का बदल लिया। एक्सक्यूज क्या था? US सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना। आज आपके रशिया के पुतिन क्या कह रहे हैं? अब खाजिया और ओसेशिया, I've sent my their Russian citizens over there, and that is why we went in there to support them, and they took a chunk out of Georgia. आज यूक्रेन में क्या हो रहा है? वो यही हो रहा है। पुतिन यही कह रहे हैं, it's the same thing. You guys did it, I did it. What's the difference? You see, so when the application of law is done in this selective manner, other people will find that. And आज वो टेररिज्म के एक्सक्यूज बनाते हुए क्या क्या नहीं हो रहा पूरी दुनिया में, क्या क्या नहीं हो रहा, क्या क्या एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कौन कौन क्या कर रहा है। That is something that unfortunately has happened. A third example as a result मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्होंने बस हार मान ली, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल जस्टिस को कोई वो नहीं होगा, अब हमें खुद करना है मुल्क के हिसाब से। Last year, if you remember, Azerbaijan waited for 30 years for justice on what was going on in Karabakh.
उनको पता था कि भाई ये कोई इंटरनेशनल निज़ाम नहीं आने वाला, कोई UN की फोर्सेस नहीं आने वाली। ये खोजा मैसकर के साथ जो मुसलमानों के साथ आर्मेनियन फौज ने किया, ये कोई हमें लिफ्ट नहीं करने वाला। 30 साल से उनको ये बात पता थी और 30 साल की उन्हें प्रिपरेशन करी, और जब उनको मौका मिला they took military action. They took military action and secured their rights and their people's rights in Karachi. Because what international justice? What to expect? So countries will then start taking it upon their own to exercise that. So these are some of the ramifications of that. So I'll just end with this thought. There can never be international peace until there is international justice. And that is both when it's unselective and it's even and fair for all. And that's when it is empowered. And when फैसले होते हैं, UN sanctions लगते हैं, United Nations के Security Council के resolution pass होते हैं, तो there should be implemented by the letter and the law. And also, you need to bring the whole world together with their values to truly create a universal system. So only then can we truly have international peace, when we have international justice. Thank you.